Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our fourth lecture of module 2. In this lecture, we are going to discuss about distribution reservoirs. Following topic will be covered. First one is introductory part of distribution reservoir. Next one is what are different type of distribution reservoirs, and next one is what are various storage zones in a reservoir. So, starting with basic of distribution reservoir, actually what distribution reservoir is and what are the functions of distribution reservoir. So, distribution reservoir are also known as service reservoir. Distribution reservoir are also known as service reservoir. Basically what they do, they store water, and that water is treated water, and the treated water is supplied at the time of emergency, and this emergency is in the form of fire or breakdown, and it also helps in absorbing the early fluctuation in a normal water demand. So, बेसिक ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर्स है. नेक्स्ट हम बात करें इनके फंक्शंस की. तो बेसिक इनका जो फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, हमारी जो अर्ली वेरिएशंस हैं, जो हमारे डिमांड में अर्ली वेरिएशंस हैं, इनको क्या करते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और इनको जब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इट मीन्स जो हमारा पंप है या जो हमारी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट रेट पे ऑपरेट कर सकते हैं. सो इफ़ दे मेक water treatment units and pumps to operate at a constant rate, it helps in reducing the RMO cost, that is repair, maintenance and operation cost, and also improves the efficiency of the system. Distribution reservoir also helps in maintaining constant pressure in the distribution mains. In their absence, the pressure will fall down as the demand of water increases. So, अगर उस केस में जब हमारी डिमांड जो है इंक्रीज कर रही है और आपका जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जा रहा है, तो उस केस में इस जो प्रेशर फॉल को है वो हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंप्स. बट मानते हैं, ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि आपके पंप्स जो हैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में जो ये आपके प्रेशर में फ्लक्चुएशन है उसको मेंटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर. सो दीज आर वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग कांस्टेंट प्रेशर. और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पंप्स हैं वो बेसिकली आप किसी भी एक पंप को 24 आवर नहीं ऑपरेट कर सकते हो. तो जो हमारे पंपिंग आवर हैं, बेसिकली अगर हम उन्हें लिमिट करना चाहें कितने के लिए, फ्रॉम 8 to 16 आवर्स, देन जो रिमेनिंग आवर्स होंगे उनमें हम वाटर कहाँ से सप्लाई कर सकते हैं. तो उन रिमेनिंग आवर्स में हमें अगर वाटर सप्लाई करनी होगी तो देन उस केस में आपका जो हेल्पफुल होगा, दैट हेल्पफुल यूनिट विल बी डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर. सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, pumping of water in shift is made possible without affecting the supply. Next function is the water stored in this reservoir can be supplied during emergencies such as breakdown of pumps, heavy fire demand, and all these function leads to overall economy by reducing the size of pump and by reducing the size of pipelines and treatment units. Coming to next topic, that is classifications of distribution reservoir. On the basis of elevation with respect to ground, distribution reservoir can be classified into surface reservoirs and elevated reservoir. Coming to our first classification, that is surface reservoir. Basic surface reservoir are circular or rectangular tanks, and they are constructed at a ground level or below the ground level. That is why we are calling it as a ground reservoir. And these ground reservoir or these surface reservoir are basically constructed at high point in the city.
वाई सो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेसिकली अगर हम अपने इस रिजर्वायर को क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी दैट हम क्या करें, वाटर को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो करा सके। इफ़ इन अ सिटी, अगर कोई शहर में हमारे जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो मोर देन 1 है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट मोर देन 1 रिजर्वायर्स। और ये जो मोर देन 1 रिजर्वायर है, ये क्या करने वाले हैं, ये आपके सिटी के डिफरेंट जोन्स में क्या कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई करेंगे। सो सेपरेट रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड इन ईच जोन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ओके, इन ग्रेविटेशनल टाइप ऑफ distribution system, water is stored in the ground service reservoir and they are directly sent from there into distribution system। अगर ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने इस सरफेस रिजर्वायर को लोकेट किया है, अगर वो सफिशेंट हेड अवेल करा रहे हैं कि जिनसे हम अपने वाटर को कहाँ तक, कंज्यूमर तक पहुँचा सकें, तो उस केस में क्या करते हैं, हम वाटर को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इस ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर से हम कहाँ पे सेंड कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। बट अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, मीन्स प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में हम कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम यूज़ करेंगे। और कंबाइंड ग्रेविटी एंड पंपिंग सिस्टम में क्या करने वाले हैं, हमारा जो वाटर आपका एक ग्राउंड रिजर्वायर में स्टोर्ड है, उसको विद द हेल्प ऑफ पंप क्या करेंगे, हम एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर तक पहुंचाएंगे। और देन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, आपको आप डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में देखने को मिल सकता है। कमिंग टू कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, तो बेसिकली हमें यह देखने को मिलता है कि जो आपके ग्राउंड रिजर्वायर हैं वो जनरली 2 कंपार्टमेंट्स में होते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 2 कंपार्टमेंट में कर रहे हैं, कि अगर कभी हमें रिपेयरिंग वर्क करना है तो हम क्या कर सके, एक को स्टैंड बाई पे रखें और दूसरे का यूज़ कर सकें। दैट्स वाई वी आर मेकिंग इट एज इन 2 कंपार्टमेंट्स। सो हम इन्हें 2 कंपार्टमेंट्स में बताएंगे, और जब भी हमें रिपेयरिंग करनी होगी तो जो हमारे इंटरकनेक्टिंग वॉल्स होंगे जो कि इन दोनों कंपार्टमेंट को कनेक्ट कर रहे होंगे, हम क्या कर देंगे, हम उनको ब्लॉक कर देंगे। मीन्स हम उनको किसी ना किसी तरीके से सट करने वाले हैं। तो जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो आपका पोर्शन है जो कि इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को क्लोज कर देंगे। इनको क्लोज किया तो आप देख सकते हो कि अब आपके दोनों कंपार्टमेंट्स सेपरेटली बिहेव करेंगे। हम अब क्या कर सकते हैं, इसमें क्लीनिंग और रिपेयरिंग वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरे यूनिट्स हैं आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ओवरफ्लो पाइप है। बेसिकली ओवरफ्लो पाइप क्यों यूज़ कर रहे हैं, जब हमारा वाटर का जो लेवल है आपके फुल सप्लाई लेवल के बियॉन्ड जाता है, तो उस केस में यहाँ से आपका जो एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर है वो ओवरफ्लो कर सकता है। नेक्स्ट यूनिट इज वेंटिलेटर्स। बेसिकली वेंटिलेटर्स क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वेंटिलेटर्स जो प्रोवाइड इसलिए किए जा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे ये जो पोर्शंस है, यहाँ पे एयर का फ्री सर्कुलेशन हो सके। टू इंश्योर free circulation of air, we are providing ventilators in reservoir. Okay, and the last one is that is cement concrete floor, and the cement concrete floor is designed in such a way that our floor will be sloped. ऐसा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली स्लोप्ड बनाने से ये होता है कि जब भी हम इसे क्लीनिंग कर रहे होंगे तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आपके सेंट्रल वॉशआउट्स हैं वहाँ से हम पूरी तरीके से वाटर को रिमूव कर सकते हैं। सो कमिंग टू कंपैरिजन पार्ट ऑफ ग्राउंड स्टोरेज एंड एलिवेटेड स्टोरेज, तो बेसिकली हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपके ग्राउंड रिजर्वायर हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा ईजी पड़ता है, वाइल अगर हम एलिवेटेड स्टोरेज की बात करें तो वहाँ पे हमें कन्वीनियंट नहीं होती है। ओके, और जो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, ये कन्वीनियंट क्यों नहीं है, क्योंकि जब भी हम एलिवेटेड रिजर्वायर की बात करेंगे तो बेसिकली हमें क्या चाहिए होंगे, हमें चाहिए होंगे कुछ सपोर्ट्स, वर्टिकल सपोर्ट, जिसके ऊपर आप क्या करो, अपने रिजर्वायर को बना सको। सो ये सपोर्ट्स आपके उतने स्ट्रांग हो कि जो आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपको क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो ये थोड़ा सा आपको दोनों में कंपैरिजन देखने को मिल सकता है। अब इनकी सुटेबिलिटी को लेकर बात करें कि हम इन्हें कहाँ पे किसे प्रीफर करेंगे, तो अगर आपके किसी भी एरिया में अगर आपको हाई पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, एलिवेटेड स्टोरेज प्रीफर करने वाले हैं। बट अगर किसी भी एरिया में आपको ईजिली हाई ग्राउंड देखने को मिल रहा है तो देन हम वहाँ पे क्या करना है, ग्राउंड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं।
और ये जो ग्राउंड स्टोरेज है बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, यूज फॉर लार्ज लोकल सप्लाईज। जो आपके एलिवेटेड स्टोरेज हैं ये क्या कर सकते हैं, ये आपको एक शॉर्टर एरिया, हाँ भाई हम इनको शॉर्टर एरिया बोल रहे हैं कि स्मॉलर एरिया बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, एक लार्ज एरिया में वाटर की सप्लाई करनी है, मीन्स आपका जो वाटर स्टोरेज टैंक होना चाहिए वो भी क्या करे, एक ह्यूज अमाउंट में वाटर स्टोर करे। और ह्यूज अमाउंट में वाटर स्टोर करना इट मीन्स हमें जो अपना स्ट्रक्चर बनाना है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और हैवियर और बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमें ये सपोर्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और जो उसके नीचे के फाउंडेशंस हैं वो भी स्ट्रॉन्गर चाहिए। सो इस वजह से क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ये आपकी जो सप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा एरिया में नहीं कर पाते हैं विद इन कंपैरिजन टू आवर ग्राउंड स्टोरेज। और जो हमारे ग्राउंड स्टोरेज हैं वो आपको इकोनॉमिकल देखने को मिलेगा, वाइल जो आपके एलिवेटेड स्टोरेज हैं दे आर लेस इकोनॉमिकल एंड नीड्स मोर मेंटेनेंस। एंड इन ग्राउंड रिजर्वायर देयर इज नो लिमिट इन द साइज ऑफ रिजर्वायर, जस्ट अभी जैसा डिस्कस किया। और एलिवेटेड रिजर्वायर्स में क्या होता है, एलिवेटेड स्टोरेज में क्या होता है, आपको लिमिट्स देखने को मिलेंगी कि क्या आपके वो स्ट्रक्चर्स कैपेबल हैं उन सारे अमाउंट को होल्ड करने के लिए, उन सारे अमाउंट को जो भी उनसे लोड आ रहे हैं उनको बियर करने के लिए। सो नेक्स्ट है हम लोग का दैट इज स्टोरेज जोन ऑफ रिजर्वायर। अब स्टोरेज जोन की बात करें तो बेसिकली हम सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग स्टोरेज जोन। इस जोन को बेसिकली आप बोल सकते हो ऑपरेशनल स्टोरेज, या तो यूजफुल स्टोरेज, या तो लाइव स्टोरेज। अब ये जो हमारा ऑपरेशनल स्टोरेज है या जो यूजफुल स्टोरेज है या लाइव स्टोरेज है, बेसिकली ये क्या है, ये डिफरेंस है किसका, वॉल्यूम्स का इन बिटवीन पंप ऑन एंड पंप ऑफ लेवल। मीन्स अगर हम बात करें ऑपरेशनल स्टोरेज क्या होगा, अगर हमारा ये केस है जब आपका पंप ऑफ पोजीशन में है, ये केस सिचुएशन है जब आपका पंप ऑन सिचुएशन में है, तो ये जो स्टोरेज रेंज है इसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, इसी को बोल रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग स्टोरेज और यूजफुल स्टोरेज। ओके, व्हेन द टैंक इज इन यूज। नेक्स्ट वन इज दैट इज इक्वलाइजिंग स्टोरेज। इक्वलाइजिंग स्टोरेज क्या है, बेसिकली दीज आर यूज्ड व्हेन द सोर्स पंपिंग कैपेसिटी कैन नॉट मीट द पीरियोडिक डेली और पीक डिमांड। तो उस केस में क्या करते हैं, जब आपके सोर्स कैपेबल नहीं है कि डिमांड्स को फुलफिल कर सके, देन उस केस में क्या करते हैं, हम इस स्टोरेज जोन से वाटर की सप्लाई करते हैं। और ये जो स्टोरेज जोन है ये क्या करता है, अलाउ करता है वाटर प्रोडक्शन फैसिलिटी को, दैट अलाउज वाटर प्रोडक्शन फैसिलिटी टू ऑपरेट एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट रेट, रिलेटिवली कांस्टेंट रेट पे ऑपरेट कर सकता है। डेली पीक रेट्स कंपेयर टू एवरेज डेली डिमांड डिटरमाइंस द वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज। मीन्स अब जो हमारा डेली पीक रेट है, मीन्स अगर हम यहाँ पे दो टर्म्स की बात करें कि आपका एक क्या है पीक डिमांड है, दूसरा आपका एवरेज डिमांड है। लेट्स से ये आपकी एवरेज है, एक वैल्यू दैट इज एवरेज, ये आपकी बोल सकते हो दैट इज पीक और मैक्सिमम, एंड दैट इज मिनिमम। तो अगर हमने आपके जो सिस्टम डिज़ाइन किया है वो किसको देखते हुए डिज़ाइन किया है, इस पर्टिकुलर रेट को देखते हुए किया है, मीन्स एवरेज रेट को देखते हुए किया है। तो ये जो आपका जब आपकी डिमांड्स क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी, उस केस में जो ये इस रेंज का या इतने अमाउंट में जो डिमांड फुलफिल करना है वो कौन फुलफिल करेगा, दैट विल बी फुलफिल्ड बाय योर इक्वलाइजिंग स्टोरेज। कमिंग टू नेक्स्ट जोन दैट इज स्टैंड बाई और ब्रेक डाउन और कंटिजेंसी स्टोरेज। तो ये बेसिकली प्रोवाइड किया जा रहा है। द पर्पज ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी शुड सोर्स फेल। अगर आपका सोर्स क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, या सोर्स आपका स्टैंड बाई मोड पे है, या सोर्स आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, उस केस में आपके जो स्टोरेज होंगे वो बेसिकली इस पर्टिकुलर जोन से फुलफिल होंगे। जो आपकी डिमांड होंगी इन जोन से हम क्या कर सकते हैं, इस स्टोरेज जोन से उसको फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमरजेंसी और फायर स्टोरेज। द स्टोरेज टेक केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर और अनयूजुअल इमरजेंसीज, जो हमारी इमरजेंसी के टाइम होंगे, मीन्स फायर के टाइम में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो जोन है उससे वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। डेड स्टोरेज है, बेसिकली डेड स्टोरेज आप बोल सकते हो कि ये आपके टैंक का बॉटम मोस्ट जोन होगा, जो कि हम कभी नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसे हम वाटर कभी भी बेनिफिशियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं। सो वाटर फ्रॉम डेड स्टोरेज कैन नॉट बी ड्रॉन आउट और यूज्ड बेनिफिशियली बिकॉज ऑफ पाइपिंग एलिवेशन और लो प्रेशर। तो जो वाटर
ना यूज़ करने के पीछे बेसिक 2 रीजंस देखने को मिल सकते हैं। आप एक ये बोल सकते हो कि आपका जो एलिवेशन है पाइप का, एक पॉसिबल रीज़न वो हो सकता है। दूसरा आप ये देख सकते हो कि जो प्रेशर हेड अवेलेबल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, सो इस वजह से हम वाटर को कभी भी डेड स्टोरेज जोन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट शुड बी आवर इफेक्टिव स्टोरेज वॉल्यूम, तो इफेक्टिव स्टोरेज वॉल्यूम विल बी व्हाट, टोटल वॉल्यूम माइनस डेड स्टोरेज वॉल्यूम। तो मीन्स जो आपका टोटल वॉल्यूम है टैंक का, उसमें से अगर हम डेड स्टोरेज वॉल्यूम को माइनस कर दे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा इफेक्टिव स्टोरेज वॉल्यूम। कमिंग टू एलिवेटेड रिजर्वायर्स, तो अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि एलिवेटेड रिजर्वायर्स क्या हैं। ऐसे रिजर्वायर जो कि कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, आपको देखने को मिलेगा ये कंस्ट्रक्ट किए गए हैं अबव द ग्राउंड सरफेस, ओके। और ये कहाँ पे प्रीफर किए जा रहे हैं, ये प्रीफर वहाँ पे किए जा रहे हैं जहाँ पे आपको हाई ग्राउंड नहीं मिल रहा है। और अगर हाई ग्राउंड नहीं मिल रहा है, इट मीन्स उस केस में हम वाटर को अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्लो नहीं करा सकते कहाँ तक, कंज्यूमर्स तक। सो उस केस में हमें क्या चाहिए, अपने साइड से आर्टिफिशियली हेड क्रिएट करना पड़ेगा। और वो आर्टिफिशियली हेड क्रिएट किया सकता है या तो विद द हेल्प ऑफ पंप, या तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग एलिवेटेड रिजर्वायर्स। सो ये पर्पज़ है कि हम एलिवेटेड रिजर्वायर्स को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो वाटर लेवल इज मेंटेन इन दीज रिजर्वायर to obtain gravity flow for the distribution network at adequate pressure at consumer taps, okay, and these elevated tanks are constructed with RCC और स्टील। जनरली देखने को ये मिलता है कि ये को या तो आपको RCC के बने हुए मिलेंगे या तो आपको स्टील के बने हुए मिलेंगे। कमिंग टू इट्स शेप, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपके एलिवेटेड रिजर्वायर हैं ये सर्कुलर शेप के हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर के शेप हो सकते हैं, और आपके ये एक्सेप्ट हो सकते हैं, ओके। जो अभी आपके करंट, आप बोल सकते हो कि करंटली कौन से टैंक्स यूज़ हो रहे हैं, क्या स्टील टैंक यूज़ हो रहे हैं या आरसीसी टैंक यूज़ हो रहे हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो टैंक प्रीफर्ड है वो प्रीफर्ड है आरसीसी टैंक ओवर स्टील। वाइस हो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टील में देयर इज चांसेस ऑफ कोरोजन। तो अगर कोरोजन के चांसेस हैं, इट्स ऑब्वियस कि आपका जो टैंक है वो कहाँ पे एक्सपोज्ड है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है, तो आपको कोरोजन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आपको आरसीसी के टैंक्स देखने को मिलते हैं। और उन आरसीसी टैंक में कौन से टाइप का देखने को मिलेगा, तो दैट टैंक इज ऑफ इंच टाइप। और इंच टाइप टैंक आपको ये सामने देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको टैंक देखने को मिल रहा है। दैट टैंक इज आर इंच टाइप एलिवेटेड रिजर्वायर, ओके। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके जो टैंक्स हैं ये स्ट्रक्चरली साउंड है और इकोनॉमिकल है। अब इसमें एक नेक्स्ट ये आता है कि हम इन आरसीसी टैंक्स को प्री स्ट्रेस कंक्रीट के भी बना सकते हैं। प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बनाने से जो बेनिफिट्स देखने को मिलता है कि प्री स्ट्रेंथिंग की वजह से हमें सेविंग्स मिलती है। और सेविंग्स किस में मिलती है, स्टील में हम क्या कर सकते हैं, अप टू 60% स्टील हम सेव कर ले रहे हैं, और हम कंक्रीट की जो बात करें तो अप टू 40% कंक्रीट हम सेव कर ले रहे हैं। तो कंसिडरेबल सेविंग हो जा रही है। और जो हमारे एलिवेटेड रिजर्वायर्स हैं वो आपको ग्राउंड रिजर्वायर से कंपेयर करने पे मिलता है कि हमारे कॉस्टली हैं। कॉस्टली क्यों है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे हमें जो रिक्वायरमेंट है आपको स्ट्रक्चर को साउंड बनाने की, वो भी क्या है, वो भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें टोटली सारे जो लोड्स हैं, अगर हम जस्ट बात करें यहाँ से इस फिगर से, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ये आपका टैंक है ये सारे लोड्स आपके इन कॉलम्स के द्वारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो इसके कंस्ट्रक्शन के वजह से आपको देखने को मिलता है इसकी कॉस्ट क्या है, आपकी इंक्रीज़ हो जा रही है, ओके। और ये जो हमारे एलिवेटेड रिजर्वायर होते हैं इनको हम बनाते कहाँ या लोकेट कहाँ पे करते हैं, तो जनरली ये लोकेट किए जाते हैं आपके हार्ट ऑफ द सिटी में, ओके। और ये जो आपके एलिवेटेड रिजर्वायर्स हैं इनको बेसिकली हम क्या करते हैं, टॉप से कवर कर देते हैं जिससे कि फर्दर ये कंटामिनेट ना हो, मीन्स यहाँ पे आप बाहर से डर्ट ना इंट्रोड्यूस हो सके। लेकिन फ्री सर्कुलेशन के लिए या आप एयर के फ्री सर्कुलेशन के लिए अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करते हैं। अब पार्ट्स पे आते हैं इनके, बेसिकली एलिवेटेड रिजर्वायर के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो इट्स ऑब्वियस है कि अगर हमने एक टैंक बनाया है तो हमें इनलेट चाहिए, आउटलेट चाहिए, ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप बोल सकते हो कि आपके किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर में, अब क्योंकि एलिवेटेड की बात कर रहे हैं तो इनलेट पाइप होगा जिससे कि आपका वाटर एंटर कर सके। दूसरा आपको आउटलेट पाइप देखने को मिलेगा जिससे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन मेन कनेक्टेड होगा,
और यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को डाइवर्ट कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम कंज्यूमर तक वाटर पहुँचा सकते हैं। ओवरफ्लो पाइप्स होंगी। ओवरफ्लो पाइप्स की बात करें तो हम लोग का जो आप इसमें देख सकते हो, इसका ये जो फुल सप्लाई लेवल है, जब भी वाटर आपका इस लेवल के ऊपर जाएगा तो देन उसके लिए जो एक्सेस वाटर होगा वो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओवरफ्लो पाइप का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्लोट गेज। इसका क्या यूज़ है, बेसिकली हमें किसी भी टाइम पे अगर जानना है कि आपके टैंक में व्हाट इज़ द वाटर लेवल, तो वो इंडिकेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्लोट गेज का यूज़ कर लेते हैं और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रीड करके जान सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वॉश आउट पाइप। वॉश आउट पाइप का यूज़ क्या है, अगर हम कभी भी अपने टैंक का मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमें वाटर क्या होता है, अपने टैंक से निकालना होता है, तो उस केस में आपका वॉश आउट पाइप हेल्पफुल हो जाता है। ऑटोमेटिक डिवाइस, अब क्योंकि बेसिक हम पंपिंग कर रहे हैं, पंपिंग करेंगे, आपका वाटर इनलेट के थ्रू टैंक में पहुँचेगा। टैंक में पहुँचने के बाद जैसे ही आपका FSL पहुँचेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ से वाटर आपका क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो पाइप के थ्रू बाहर जाने लगेगा। तो कुछ हमारे पास ऐसे अरेंजमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको ये बता सकें कि अब आपकी टैंक फुल हो चुकी है और आपको पंपिंग अब बंद कर देनी चाहिए। तो उस पर्पज़ के लिए हम बेसिकली ऑटोमेटिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज़ लेडर। लेडर, अगर हमें टॉप ऑफ रिजर्वायर तक पहुंचना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है कुछ अरेंजमेंट्स चाहिए, तो लेडर वो मीडियम होता है जो कि आपको वहाँ तक पहुँचाता है। मैन होल कवर। मैन होल कवर इसका क्या यूज़ है, बेसिकली जब भी हमें आपको टैंक में एंट्री चाहिए होगी या जब आप टैंक का इंस्पेक्शन करना चाहते हो तो उस केस के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट दैट इज़ वेंटिलेटर्स। बेसिकली वेंटिलेटर्स का काम क्या है, एयर का फ्री सर्कुलेशन इंश्योर करना। नेक्स्ट वन इज़ स्टैंड पाइप। बेसिकली स्टैंड पाइप क्या है, ये एक तरीके का आपको एलिवेटेड टैंक ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नॉर्मली अगर हम प्रीवियस वाले से कंपेयर करें तो प्रीवियस वाले केस में क्या था कि आपके जो टैंक थी, अगर आप ये अज्यूम करो ये आपकी टैंक है तो इसमें आपको सपोर्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इस केस में क्या है, ये जो सपोर्ट्स हैं, आपको ये जो 3 कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे कोई भी कॉलम्स नहीं होंगे। मीन्स आपका जो टैंक होगा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होगा, किसके, आपके ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में होगा। तो ये बोल सकते हैं कि बेसिकली ये आपका एक टॉल सिलेंड्रिकल सेल है जो कि रजिस्ट कर रहा है, जो कि रेस्ट कर रहा है, इट्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। और इनके डायमेंशंस कितने होने चाहिए, जो स्टैंड पाइप है उसकी हाइट आपको 15 to 30 मीटर देखने को मिल सकती है, एंड डायमीटर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ 10 to 15 मीटर इन अ डायमीटर। और ये बने किसके होते हैं, बेसिकली हम अगर बात करें मटेरियल की तो दे आर मेड अप ऑफ RCC, और हम अगर इसमें बात करें, प्रिफरेबली बात करें तो हम इसकी बात करते हैं स्टील की। ओके, और यहाँ पे जस्ट हमें कुछ और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे से अगर हम हाइट बढ़ाते जाते हैं, अब हमने एक लिमिटेशन दे दी कि आपको हाइट ये रखनी है, आपको डायमीटर ये रखना है, तो जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हुप टेंशन डेवलप होगा, और उस हुप टेंशन की वजह से हम इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको यहाँ पे हुप टेंशन की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट होगी जो कि आपके उसी टैंक को बियर करनी पड़ेगी। सो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि आपको इसकी हाइट जो है कितनी रखनी चाहिए, कुछ उस अमाउंट पे रखिए कि जो आपका हेड अवेलेबल हो सके वो 15 मीटर तक हो सके। ओके, सो RCC स्टैंड पाइप आर नॉट यूज्ड अबव 15 मीटर। सो RCC पाइप को हम लोग कभी भी 15 मीटर से ज़्यादा की हाइट के लिए प्रीफर नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हुप स्ट्रेस ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर हम इसे नहीं रेगुलेट कर सकते हैं या नहीं कंट्रोल कर सकते तो इट्स ऑब्वियस कि आपको फेलियर देखने को मिलेगा आपके टैंक में, आपके स्टैंड के पाइप में, स्टैंड पाइप में। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं द यूजफुल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टैंड पाइप। अब इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है इस टैंक की, तो शायद आपको ये देखने को मिलेगा कि टोटल स्टोरेज आपकी टैंक का ये है, लेकिन इसमें से यूजफुल स्टोरेज कितना है। तो यूजफुल स्टोरेज के लिए समझें कि आपका क्या है, ये एक आप बोल सकते हो ये आपका आउटलेट है जिससे कि आप पानी को क्या कर रहे हो, इस टैंक से बाहर निकाल रहे हो और डिस्ट्रीब्यूशन मेन तक सप्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली इसके लेवल और जो आपके इस टैंक का फुल सप्लाई लेवल है, इन दोनों के एलिवेशन का बीच का जो डिफरेंस होगा, इट गिव्स अस यूजफुल स्टोरेज। तो यहाँ से आपको यूजफुल स्टोरेज देखने को मिलता है। और जो इसके नीचे के स्टोरेज है, अगर हम ये भी पूछें कि जो इसके नीचे का वाटर है वो किस पर्पस के काम आएगा, जो एडिशनल स्टोरेज है, तो बेसिकली हम उस एडिशनल स्टोरेज को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी के वक्त। जैसे कि
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फायर फाइटिंग, और उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, एलिवेटेड पंप्स का बूस्टर पंप्स का यूज़ करते हैं. ओके, दीज ऑल आर द रेफरेंसेस. थैंक यू.